Okay, Assalamu alaikum everyone. This is our second demo class today, and inshallah we will be proceeding with the functions of FBR today. So before we start, I would just ask you guys, were you able to go through the syllabus of FBR descriptive test at home? Did you go through it? Okay. So what was your observation regarding it? Anything that you observed that we can talk about and we can think about later on? Anything? Yes, correct. That syllabus is very long, I understand that. So we can cover inshallah in a way that we can cover the functions today inshallah, and we can cover the rest of the functions in our next class most probably. So what we can do is that we can study and understand how the entire taxation system works in Pakistan, and how can we and we can understand this thing as well, that who gave the powers to form this organization and who actually has the power to control and govern every institution in Pakistan. So as we know this thing, that this exam is of descriptive nature. In our previous classes that I had given in the screening test, I had mentioned many points that can be very relevant right now. You can watch the videos on YouTube, and plus those videos will also be given to our students via our WhatsApp group. I just need to review things with you. Before we talk about the functions of FBR, let's talk about Federal Board of Revenue. So let's give a quick review, and then I can give you some questions for practice in the class right now. We will just be taking 10 minutes per assignment per question, and inshallah we will be solving 2 questions in the class, and I'll tell you how to go about it. Before I start with you, I need to understand and need to check your knowledge as well, and online students can respond on the chat as well. So Federal Board of Revenue. Who can tell me when was this formed? Quickly tell me. What was the previous name? CBR, Central. It was formulated in 1924. Be very specific with the years. And then later on tell me. FBR, it became Federal Board of Revenue, which we have mentioned here, in 2007. Via or not via, we will write wide. Wide means check and go through, look into, alright. Wide FBR Act 2007, right. Later on in 2007 it became Federal Board of Revenue with the help of FBR Act 2007. Yeah. Yes, I'll go on. Just let me know. This came into being with the help of an act. Okay? An act is an act of a parliament. An act is an act of the people. An act is an act of the people. Whom are you voting? The members of the parliament, the members of the National Assembly, and the members of the provincial assemblies. The member of the National Assemblies are representing your constituency. And when they are representing your constituency, they are the people who are making the law. So parliament is an entity which makes the law. Judiciary is an entity which interprets the law. And agencies such as Federal Board of Revenue is a regulator that implements and enforces the law. So who is making the law? The parliament. Let's start with that. So parliament actually made the laws. Who elected the parliament? The people of Pakistan. We can write representative
or represents the public via different constituencies. If I don't start like this, you won't be able to understand many things. So let me just go through along with you for the entire topic. Okay, the Parliament made the laws, all right, and who implements the law? Implementation is by enforcement agencies. One of the enforcement agency is Federal Board of Revenue. There are many other agencies. One of them is Federal Board of Revenue. Okay, now this has been appointed to enforce the law. Which law? Yes. Okay. Are we also talking about the stamp duties and the property tax? Does FBR check on that? Does FBR enforce on that? They are provincial subjects. So okay, we are supposed to implement law. Which law? Tell me the name. Yes, tax laws. Which law? Name anyone. Okay, first one is, let's talk about the federal taxes right now. And I will also talk about, one by one I'll talk about them. So, federal taxes are governed by, for example, income tax. Okay, one by one I'll ask you. Name the law. Name the law. Complete the sentence. 2000. Income tax ordinance. 2001. Don't forget this thing. Then Sales Tax Act 1990. Okay, then Federal Excise Act 2005, and then did you ever had a chance to open the Bare Act of Income Tax Ordinance? Anyone? Did it mention the board? And in the initial definitions, the board hereby means the Federal Board of Revenue. Have you ever opened this Sales Tax Act? And when they talk about the board hereby means the Federal Board of Revenue. And yes, and Federal Excise Duty. Have you ever opened it? Very small law. Customs Act. Open it, and it will mention specifically, there are a lot of amendments everywhere, it will specifically mention FBR. It will mention FBR. Who has given the power to implement, enforce the law? These acts. And these are the acts which were made by the Parliament elected by us. Now, these acts have given the power to collect taxes to FBR, to that agency. Before that, which act announced the, you can say, the inception of FBR? This act. So, with the help of Act of 2007, FBR was made. FBR was made, right? With the help of these laws which have referred specifically to the FBR Act, FBR in their specific laws, that ये agency जाकर enforce करेगी,
उस एजेंसी को बनाने वाला एक्ट कौन सा है? 2007 के अंदर एफबीआर एक्ट आया। उन्होंने कहा एक एजेंसी है जिसका नाम पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, अब इसको हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करते हैं, इसके ये फंक्शन है, ये पावर है, यहाँ तक ये चीज़ें ये इस तरह से परफॉर्म करेगा। उसके अंदर अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसके अंदर डिसमिसल कैसे होता है, वो किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, कौन उसको सरबराही करेगा, एंड उसके लोग किस तरह से अपॉइंट किए जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जी पावर्स एंड फंक्शंस। तो एफबीआर एक्ट जो कि बहुत ही स्मॉल है, इट्स वेरी स्मॉल एक्ट विच आई ऑल्सो आस्क द मैनेजमेंट टू शेयर विथ यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज ऑन द ग्रुप ऑफ द ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो अभी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि एक्ट की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, दूसरे एक्ट की मदद से उस ऑर्गेनाइजेशन को पावर मिला कि ये फंक्शन आपने परफॉर्म करने हैं। अब कौन से फंक्शन? वो एफबीआर एक्ट के अंदर मौजूद हैं। सो सब अपने अपने फ़ोन्स के अंदर, सब अपने पास इस एफबीआर एक्ट के फंक्शंस को राइट नाउ एट द मोमेंट खोलें। और खोलने के बाद अभी आप मुझे एक बात बताएं कि वहाँ पर पहला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? जी, आप सेक्शन 4 में चले जाएं, सेक्शन 4 ऑफ एफबीआर एक्ट 2007। तो आप यहाँ पे देखेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एफबीआर। पावर्स के ऊपर वो नीचे बात करेगा इन लेंथ, अभी वो यहाँ पे फंक्शंस की बात कर रहा है। पहला फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन? पहला फंक्शन की बात कर रहा है टू इम्प्लीमेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ टैक्सेस? असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, ओके वेरी गुड। लेकिन हम ये लास्ट स्टेप है, ठीक है? तो हम अगर आप लोगों ने लिख लिया हो या तो आई वुड लाइक टू रब इट, ठीक है? ये भी मिटा दिया मैंने। एफबीआर का पहला काम जो है, पहला फंक्शन है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। जब टैक्स में एडमिनिस्ट्रेशन करेगा तो ही बाद में रिफॉर्म्स की बात आ सकती है। एग्रीड? हम रिफॉर्म्स कब लेकर आते हैं? व्हेन वी थिंक देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ डज एफबीआर एक्चुअली वर्क, आई विल टॉक विथ यू स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स फर्स्ट से हम एक हमारे स्टूडेंट हैं जुनैद, उनकी बात पिकअप करते हैं, असेसमेंट एंड कलेक्शन। जुनैद कहते हैं कि हम असेसमेंट एंड कलेक्शन करते हैं, क्या ये फंक्शन ऑफ एफबीआर है? यस, इट इज़ द फंक्शन ऑफ एफबीआर। लेकिन कलेक्शन इज अ लास्ट स्टेप। कलेक्शन इज अ लास्ट स्टेप। यहाँ पे हमने कलेक्ट कर लिया, लाइक आई सेड द टैक्स पेयर इज अ टीम बी, वो हमें हेल्प करेंगे कलेक्ट करने में, हम उन्हीं से कलेक्ट करेंगे। सो ही टोल्ड मी वन फंक्शन ऑफ एफबीआर, ही सेड इट एक्चुअली वर्क्स फॉर द टैक्स कलेक्शन। एक्सीलेंट थिंग। अब हम उस जर्नी को अंडरस्टैंड करेंगे, टैक्स कलेक्शन होगी कैसे। ना ओके, हम एज इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यूज जाएंगे और टैक्स कलेक्ट करेंगे, रिकवरी करेंगे, जो कि हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन भी है। एग्रीड? हम रिकवरी करने गए और हमने अमाउंट रिकवर कर लिया। लेकिन हम रिकवर करने से पहले, जो कि अगर हम विद द हेल्प ऑफ इन द फॉर्म ऑफ बैंक अटैचमेंट कर रहे हैं, उससे पहले हम लोग अपने टैक्स पेयर को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक स्टैट्यूटरी पीरियड के तहत आप 1 महीने के अंदर हमें टैक्स पे कर दें, ठीक है? और वो स्टैट्यूटरी पीरियड कौन सा होता है? सेक्शन 137, 138 की मदद से हम उनको अलाउ करते हैं कि अब आपके ऊपर ये टैक्स इम्पोज किया गया है और अब आपने इसकी रिकवरी करनी है 30 डेज के स्टैट्यूटरी पीरियड में। ये सेक्शन में मेंशन्ड है। हम टैक्स की बात यहाँ पे इन डेप्थ नहीं करेंगे, वो आप ऑलरेडी करके आए। यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग पिकअप करेंगे, ठीक है? सो व्हाट यू डिड वाज दैट कि आपने रिकवरी करने से पहले, यानी कोर्सिव मेजर लेने से पहले, आपने यहाँ पे उनको 138, 137, 138 के लिए उनको कहा कि भैया आप लोग पे कर दें, एंड यू हैव 30 डेज स्टैट्यूटरी पीरियड टाइम।
ये जो हमने उनको कैसे डिटरमाइन किया टैक्स का, हमने कैसे डिटरमाइन किया कि आपके पास ये आपका जो टैक्स ठीक है 30 डेज हमने किस तरह से डिटरमाइन किया, हमने पहले कोई ना कोई असेसमेंट की होगी, ठीक है, हमने असेसमेंट किस चीज़ की है, ओके हमने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की है। बाय फाइनेंशियल रिकॉर्ड हेयर बाय आई अंडरस्टैंड दैट असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, हेयर बाय आई अंडरस्टैंड दैट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाट डू आई मीन, इनकम स्टेटमेंट, हर जगह भी हमें इनकम टैक्स लिखने की आदत हो गई है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ठीक है, एंड कैश फ्लोज, राइट राइट, एम आई करेक्ट। आपने असेसमेंट की, फाइनेंशियल रिकॉर्ड की, आपने चेक कर लिया, क्या आप लोग एक ऑडिटर हैं, आपने चेक करके क्या किया, पढ़ा एंड दैट्स इट। क्या फाइंड करेंगे, फाइंड कैसे कर सकते हैं, आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में देखा कि ये दिस पर्सन इज एक्चुअली सेलिंग समथिंग विच इज़ इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मैंने चेक क्या किया, इनकम टैक्स इनकम स्टेटमेंट, मैंने चेक किया कि बैलेंस शीट, मैंने चेक किया कैश फ्लो। बाय फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आई मीन दिस, आई डिड नॉट टॉक अबाउट द इनकम टैक्स रिटर्न। असेसमेंट जब हम करेंगे तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं रिटर्न ऑफ द पर्सन एंड पर्सन इन एफबी इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मीन्स इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और अ कंपनी। आपने इस बंदे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी और कंपेयर किया व्हाट ही हैज गिवन अस। मैं बता आ रही हूँ उसके ऊपर, उसके ऊपर। और वो जब वो उसने हमें जो अपना वर्जन बताया इनकम टैक्स रिटर्न का, हमने उसको वॉलंटरली एक्सेप्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम असेसमेंट चेक करेंगे। अब मिसाल के तौर पर आपका सवाल ये हो सकता है, मैम एक बंदा अपने इनकम टैक्स रिटर्न को जमा करवा रहा है और उससे ये भी एक्सपेक्ट ना किया जाए कि वो गलती कर सकता है, तो ये तो बहुत गलत बात है। इनकम हर बंदा इनकम टैक्स तो उनको नहीं आता, तो इसी वजह से जैसे ही आप रिटर्न सबमिट करते हैं तो आपके पास फौरन से एक और डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता है। उसी वक्त वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास आता है वो ये कहता है कि 120 में आपने अपने आप को पहले स्टेज पर सेल्फ असेस कर लिया, अब कि जो आपने बोला है वो बिल्कुल आपके लिहाज से 100% सही है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ये आप डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे ही आप रिटर्न सबमिट करते हैं आपसे पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, क्योंकि ये आपकी फाइनल डिक्लेरेशन होगी आपके एंड से, ठीक है। जैसे ही आपने सबमिट किया दूसरा पीडीएफ आपके पास खुद ही डाउनलोड हो जाता है और आपके पास आ जाता है कि आपने अपनी असेसमेंट कर ली। पहले स्टेज पे आप अपनी असेसमेंट खुद करते हैं, एग्रीड। अब हम आते हैं उस तरफ कि आपका सवाल, आप जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि आप कंपेयर करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जो आपने खुद ने डिक्लेयर किया है वॉलंटरली, और आपने जैसे डिक्लेयर किया हमने कंपैरिजन स्टार्ट कर लिया और उसके बाद जो भी आपका टैक्स ड्यू निकला हमने असेसमेंट की, हमने आपको बताया कि भाई आपका टैक्स ड्यू है, हमने ऑर्डर पास कर दिया और ऑर्डर वेरियस सेक्शन के थ्रू पास किया और कहा कि भाई अब आपके पास ये आपका टैक्स ड्यू है, 30 डेज में पे कर दें। अब आपने जाकर उस टैक्स को
30 डेज़ में पे करें, नहीं करेंगे तो आपको फिर बहुत प्यार से समझाया जाएगा एंड फ्रेंडली तरीके से आपको समझाया जाएगा कि यू शुड पे. अगर इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन गो फॉर अपील्स एट एपेलेट फॉर ऑफ कमिश्नर अपील्स. उसके बाद अगर वहाँ पे आप समझते हैं कि आपको जस्टिस या आपके आगे चल के आपके फेवर में डिसीजन नहीं आया, यू कैन गो टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, यू कैन गो टू हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट. पर आप मुझे एक बात बताएं, वॉलंटरली टैक्स आप जब जमा करवा रहे हैं, वॉलंटरली इनकम टैक्स रिटर्न जब आप भर रहे हैं, तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, राइट? क्या बनाना पड़ेगा? आपके पास एक नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए, NTN होना चाहिए, ठीक है? अगर आप मिसाल के तौर पे, हमने यहाँ पे बात की थी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को हम सिर्फ एडमिनिस्टर नहीं कर रहे, हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं कस्टम्स को भी, हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं सेल्स टैक्स को भी, हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं अपने पास फेडरल एक्साइज ड्यूटी को भी. लेकिन हमारा पास राइट नाउ हमारा जो डोमेन है वो टैक्सेस आउटसाइड पाकिस्तान का नहीं है, हमारे पास डोमेन इनसाइड पाकिस्तान है. इनलैंड रेवेन्यू यानी कि अंदर विद इन पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो टैक्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. तो जब भी आप कोई टैक्स जमा करवाना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू वांट टू गो फॉर यू वांट टू सबमिट सेल्स टैक्स, तो सेल्स टैक्स के लिए आपके पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए STRN, और नेशनल टैक्स नंबर भी होना चाहिए NTN फॉर इनकम टैक्स, ठीक है? कुछ किस्सों के अंदर आपको कहा जाएगा कि दोनों होने चाहिए. अब राइट नाउ व्हेन यू वेंट टू, अब आपके पास NTN बनाने के लिए आपको कौन हेल्प करेगा? हु विल हेल्प यू टू मेक NTN? SBR. आपने कॉल करेंगे या चले जाएंगे? क्योंकि आप टैक्स भरना चाह रहे हैं ना. उन्होंने कहा हमें NTN बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, मैं आपको बताती हूँ. देखिए फंक्शंस ऑफ SBR के अंदर नंबर ऑफ फंक्शंस आर लिस्टेड देयर. जो हमारा डिस्कशन है, जिस तरह से मैं आपके स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर इसलिए चलना चाहती हूँ क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं किन किन फंक्शंस की ओवरऑल बात कर रही हूँ, फिर मैं वन बाय वन आपके सामने रीड भी करती हूँ ताकि आप कुछ लिखने के काबिल भी हो जाएं. मेरा समझाने का पर्पज़ ही यही है कि आप लिखने के काबिल हो जाएं. मुझे आपको जस्ट पढ़ के नहीं सुनाना है, मुझे आपको बताना है, समझाना है. आई वॉन्ट यू टू फील इट एक्चुअली हाउ इट इज़ एक्चुअली इन द डिपार्टमेंट. और मैं इनकरेज करती थी पहले भी हमारी क्लासेस के अंदर, अगर आप थोड़ा फील करना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे काम करता है तो आप मेरे ऑफिस आएँ, विज़िट करें. और कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ पे विज़िट किया था फिर तो, और माशाल्लाह दे ऑल्सो पास्ड. सो in order to submit your income tax return, you need a national tax number. In order to submit your sales tax return, you have to have a sales tax registration number. आपको registration number और STRN और बहुत सारी दूसरी IDs SBR हेल्प करता है बनाने में, ठीक है? SBR विल हेल्प यू इन रजिस्ट्रेशन. ये एक फंक्शन ऑफ SBR है. जब वो आपको रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे, वो आपको एक फैसिलिटेटर की मदद से मदद करेंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे. वो जो फैसिलिटेटर है वो कौन है? वो आपके पास प्राल है, ठीक है? एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्राल? पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? All right, so SBR help you to register and they took the services of the facilitator
PRAL to help you get yourself registered. Whenever you will call the FBR helpline, the employees of FBR will not attend the call. Who will attend the call? PRAL. If you email them, they will email you further. It's a private limited company. Their office, their people are sitting inside our offices. They have separate rooms, separate domains, servers to help FBR operate. क्या प्राल सिर्फ FBR के लिए बना है? वो कुछ और भी करते हैं जो कि आप उनकी वेबसाइट पे जाकर www.pral. इस तरह से कुछ है .com है, या आप उसको काइंडली चेक कर लीजिएगा। तो प्राल आपको रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, प्राल आपके कॉल्स भी उठाएगा, प्राल FBR के सर्वर्स को संभालता है, प्राल हमारी साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करता है। प्राल सब अगर FBR के अंदर बहुत नेशनल लेवल पे सॉफ्टवेयर चलते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ प्राल। टेक्निकल सर्विसेज हम लेते ही प्राल से हैं। तो हमारा ये कहें कि कस्टोडियन ऑफ आवर ट्रस्ट है, दे आर द कस्टोडियंस, कि उनको संभालना है, उनको मैनेज करना है। प्राल की स्लाइड मिस्टेक की वजह से व्हाट कैन हैपन, द एंटायर सिस्टम कैन एबॉलिश। तो फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके अंदर आपको फैसिलिटेट किया प्राल ने, आपके STRN के लिए, आपके NDN के लिए, वो आपको फ़ोन पे भी असेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी वेबसाइट के ऊपर वो आपको सर्विसेज देते रहते हैं, बल्कि वही देते हैं सर्विसेज, ठीक है। और वेबसाइट कौन सी होती है हमारी? IRIS जी। प्राल वर्क्स एज we have outsourced it, and by third party what do we actually mean? It's actually we have outsourced the technical services to PRAL. For example, हम financial services के लिए outsource करते हैं Big 4 को, या हम लोग ऑडिट फर्म्स को कहते हैं कि आप हमें फलां चीज़ की सर्विसेज दे दें, तो उसी तरह से हमने प्राल को सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज के लिए दिया हुआ है। जी जी। नो वी कांट, वी वोंट। इंटरमीडियरी इज समवन, मैं इस वर्ड को नहीं इस्तेमाल किया, उसकी वजह ये कि इंटरमीडियरी का मतलब होता है दो लोगों को, दो पार्टीज का कंसेंट लेकर वो करना, ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो इंटरमीडियरी कौन होता है? इंटरमीडियरी दो चीज़ों की ब्रिज है। यस वी पे, प्राल ऐसे मुफ्त में नहीं कर रहा। We take the services, yes, we take the services, all services of IT from them. और वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इट्स अ बिग इंस्टीट्यूट, we need their, it's an organization, sorry I spoke institute, it's an organization which needs services from PRAL. काफ़ी लोग ये समझते हैं इट्स अ गवर्नमेंट एंटिटी, प्राल इज़ नॉट अ गवर्नमेंट एंटिटी। वो इंडिविजुअली, सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली हमें सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। अब हम प्राल की सर्विसेज पे आएंगे, मेंशन है वो कौन सी सर्विसेज देते हैं जो हम अल्टीमेटली अपने लोगों को सर्विस दे पाते हैं, ठीक है। तो फैसिलिटेट हमें पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड करती है, ठीक है। अब हम लोग फैसिलिटेशन के बाद आ गए, हम लोगों को उन्होंने रिटर्न जमा करवाया, income tax return or sales tax return. Then we did the assessment. First assessment is done by individual or the taxpayer. उसके बाद हम लोग assessment करते हैं by FBR, field formation. उसके बाद we will go for collection. Yes,
It's a number specific allot by FBR to you guys, or your NIC is treated as your NTN. Yes. Both. Number and NIC. For example, if you are logging into the portal, you don't know anything, you will have to actually log in with your NIC. And in case of individuals, जब हम individuals को assess कर रहे होते हैं तो उनके NIC आता है. अगर हम मिसाल के तौर पर डेटाबेस के अंदर उनका NTN भी डाल के नंबर भी डाल के देख लेते हैं तो उनका NIC आता है, ऑब्लिक उनका NTN नंबर होता है. नंबर हर किसी को मिलता है. That is only for the case of individuals, not with the case of AOP. अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब पार्टनरशिप है, 10 लोग हैं पार्टनरशिप में, यू नीड अ नंबर, यू कांट राइट एनीबडी एवरीबडीज NIC. मोरओवर विद द कंपनीज एज वेल, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी. ठीक है, यहाँ पे क्लियर है बात जी? नहीं चल सकता. देखिए, हर कोई बंदा सेल्स टैक्स के लिए क्वालिफाई नहीं करता. सेल्स टैक्स इज ओनली ऑन गुड्स. सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज इज डेल्ट बाय द प्रोविंशियल अथॉरिटीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट. हम सिर्फ सेल्स टैक्स ऑन गुड्स की बात करते हैं. ठीक है, उस पर भी अगर आप अगर आप मिसाल के तौर पर एनी गुड जो कि सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर बताया हुआ है, आप वो जाके सेल करेंगे, आपको उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाना है. और जब आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी उस बिज़नेस को स्टार्ट करने की जब तक आपके पास सेल्स टैक्स नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है. जब आपने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अपना करवाया, उसके लिए भी देयर आर सेवरल थिंग्स. वो आप सारी क्राइटेरियन पूरी करेंगे, उसके बाद जाके आपको अलाउ किया जाएगा कि यस अब आपके पास STRN है, अब जाके आप बेच सकते हैं. और वहाँ पे आपको मंथली रिटर्न्स जमा करवानी पड़ेंगी. मंथली रिटर्न्स. पहले हमारे पास 1 महीने के टाइम नहीं होता था हमारे पास. इससे पहले क्या बात थी? तकरीबन आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम होता था कि आप अपना सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाएं. सोचें कितना हेक्टिक जॉब होती होगी लोगों के लिए. इतना सेल्स टैक्स एक पावरफुल है, यू कांट इमेजिन. आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज हैविंग लीनियंट व्यू बिकॉज ऑफ इट्स नेचर. सेल्स टैक्स it's actually not like that. It's based on, it's having the mindset of criminal law. Somebody has not paid STRN, तो आपको सेल्स टैक्स रिटर्न नहीं भरा, आपको पेनल्टी लगेगी and they'll enforce it. So you can't escape from that anyways. ठीक है. उसके बाद आपकी कलेक्शन होगी, चाहे वो आप खुद जाके अपनी वॉलंटरली अपना टैक्स जमा करवाएं या फिर आपको कोर्सिव मेजर्स जो कि हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं उनकी मदद से आपको करवाया जाए. आपकी कलेक्शन होगी, आप कलेक्शन जाके किस तरह से जमा करवाएंगे, आपको अपनी सेपरेटली एक PSID बनानी पड़ेगी और वहाँ पे वो कंप्यूटर के थ्रू प्राल आपको ऐसे हमारी वेबसाइट के थ्रू ऑप्शंस प्रेजेंट करता है कि वहाँ पे आप जाके वो ID बनाएंगे. वो ID लेकर जाकर आप बैंक के अंदर जाके सबमिट भी करवा सकते हैं. अब हमारे पास तकरीबन 18 से 19 बैंक्स हैं जिनके अंदर आप अपना चालान जमा करवा सकते हैं. प्लीज़ पुट योर मोबाइल्स ऑन साइलेंट. ठीक है जी. आप PSID, आपको PSID कहते हैं इसको, ठीक है, वो आपको अलॉट करता है. एंड देन उसके बाद आप वो जाके अपनी ऐप के अंदर भी डालेंगे. आपके पास कोई भी बैंकिंग ऐप उसके अंदर आप डालेंगे या आप जाके किसी बैंक के पास जाएंगे, उनको बताएंगे मेरी ये ID है, काइंडली मुझे इसका टैक्स पे करना है, वो आपको जनरेट करके देंगे. एंड देन उसके बाद आप यू कैन पे इट. दैट कैन ऑल्सो हैपन एंड यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग के ये आई थिंक ऑल 18 बैंक्स आर गोइंग टू हेल्प यू पे द टैक्सेस. पहले हमारे पास सिर्फ जो नेशनल एक्सचेकर्स होते थे या स्टेट बैंक थी या NBP थी, उनके अंदर लोगों को इनकरेज लोग जाते थे एमपे का. अब हमारे पास सारी बैंक्स करती है, मोर और लेस 18 बैंक्स हैं, 19 बैंक्स का नाम भी आपकी FBR की वेबसाइट पे मेंशन्ड है. ठीक है. दूसरी चीज़ ये, कोई क्वेश्चन बताइए.
PS जी, PSID बेसिकली एक 5 या 6 नंबर्स होते हैं, वो इस तरह से अलॉट होती है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आपको मेरे पर कोई टैक्स लगा है, मैंने वॉलंटरली अपना रिटर्न जमा करवाया, ठीक है, मैंने अपना वॉलंटरली रिटर्न जमा करवाया, मेरे रिटर्न के अंदर नीचे आ गया कि आप हमारे अकॉर्डिंगली आपकी इनकम इतनी है, आपको ये टैक्स पे करना होगा व्हेन यू आर फाइलिंग योर रिटर्न। अभी आपने सबमिट नहीं किया, ठीक है, अब आपके पास वो टैक्स का अमाउंट आ गया, अब आप उसको पे करेंगे। आप सबसे पहले ई पेमेंट्स पे जाएंगे, ठीक है, तो जब आप ई पेमेंट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आप बताएंगे कि मैं टैक्स को एडमिट कर रहा हूँ, मैं अपने टैक्स को एडमिट कर रहा हूँ और मेरे टैक्स को एडमिट करते हुए मैं ये फला सेक्शन के तहत पे करना चाहता हूँ। वहाँ पे सेक्शन आ जाते हैं एडमिटेड टैक्स की, आपने वो क्लिक किया, वहाँ पे epayments.fbr पे जाएंगे, आपने कहा कि मुझे पे करना है, आपने आपने NTN लिखा, उसने आपको NTN को NIC के साथ वेरीफाई किया इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल। उसके बाद आप कहेंगे कि भाई मैं टैक्स पे करना चाह रहा हूँ, आपसे टैक्स ईयर पूछेगा, आपने टैक्स ईयर अपना सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा क्या पेनल्टी पे करना चाह रहे हैं 1000 रुपये की, क्या आप एडमिट करना चाह रहे हैं आपका कोई टैक्स है, क्या आप कोई और चीज़ में टैक्स पे करना चाह रहे हैं, वो नंबर ऑफ लॉज विल सेक्शंस विल कम। आपने उसमें से एडमिटेड टैक्स का कॉलम कोई चीज़ पिकअप कर ली, पिकअप करने के बाद वो आपसे पूछेगा हाउ मच टैक्स, जो आपके पास रिटर्न में टैक्स आया आपने वही अमाउंट आया, वर्ड्स में भी वही लिखेंगे एंड जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर ईमेल, विद द हेल्प ऑफ योर क्या कहते हैं फ़ोन नंबर। फिर थोड़ी देर के बाद वो आपको पेमेंट स्लिप जो आपका आइडेंटिटी ID है वो आपको बता देगा 5 से 6 नंबर्स की, वो आपको उधर भी बता देगा और आपकी ईमेल पे भी वो आ जाएगी। अब आपने उस पेमेंट स्लिप ID को, ये PSID को उठाया, पिकअप किया, अपनी ऐप बैंकिंग ऐप के अंदर जाकर उसको टैक्स FBR टैक्सेस के अंदर जाके आपने उसको वहाँ पर लिखेंगे, वो आपसे पूछेगा PSID दे, तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगा, आप उसको बैंकिंग ऐप के थ्रू भी पे कर सकते हैं एंड यू कैन पे इट विद द हेल्प ऑफ। तो ये तो मैं बहुत बेसिक ग्रास रूट पे चली गई हूँ। तो आपकी कलेक्शन जो होती है दैट्स फॉर वॉलंटरी, ये आप खुद जब करते हैं, मिसाल के तौर पे आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि भाई आपका ये टैक्स है, आपको ये पे करना है, तो भी आप इस तरीके से पे कर सकते हैं। पर अगर बड़ा टैक्स है तो आप बैंक में जाकर पे करेंगे, पे करके फिर उनको कंप्यूटराइज पेमेंट आपको CPR जनरेट करेंगे आपके लिए, बैंक ही करेगी। उसके बाद वो उस तरह से उसके सेक्शन कोड करेगी किस सेक्शन के तहत आप पे कर रहे हैं, फिर वो CPR आप गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटी को दिखाएंगे कि मैंने टैक्स पे कर दिया है। ये हो गई कलेक्शन। फिर हम मानेंगे कि हाँ दैट्स वी कॉल इट, नाउ वी कैन से वी हैव कलेक्शन। पर नाउ द क्वेश्चन इज दैट, मेरा सवाल यहाँ तक आप क्लियर हैं? एंड दैट इज़ नॉट इवन द 1% ऑफ फंक्शंस, दैट्स नॉट इवन 1% ऑफ फंक्शंस। लेकिन कलेक्टिवली जब आप फंक्शंस को आगे मूव करेंगे, अब आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर होंगी। पूछिए सर। हाँ, मिसाल के तौर पे उसके ऊपर अमाउंट नहीं बन रहा टैक्स का, तो वो रिटर्न सबमिट कर देगा, ठीक है। हाँ, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खुद कैलकुलेट करेगा आपके ऊपर टैक्स। आपने अपनी चीज़ें डाली एंड उसके बाद आपने डिक्लेयर जो भी किया, आपके ऊपर टैक्स आपने देखा कोई टैक्स नहीं बन रहा, आपने रिटर्न सबमिट कर दिया। आप अगर फॉर एग्जांपल टैक्स बन रहा है, रिटर्न सबमिट करेंगे, रिटर्न सबमिट नहीं होता, रिटर्न सबमिट नहीं होता अगर आपके ऊपर टैक्स ड्यू है, तो देन यू विल हैव टू पे एक्चुअली टू सबमिट द रिटर्न। हाँ 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 हाँ, FBR असेसमेंट हर रिटर्न की नहीं करता। FBR असेसमेंट कुछ असेसमेंट क्राइटेरियंस होते हैं, प्री कंडीशंस चेक कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, ये प्री कंडीशंस हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम्स में होती हैं, फिर वो पिकअप करती जाती हैं कि हाँ तो कंप्यूटर आपको पिकअप हमें करके देते हैं केसेस, हमें अकाउंटेंट AGPR वो
पिकअप करके देते हैं केसेस, ठीक है। उसके बाद हमें बोर्ड भी पिकअप करके देता है और हम डेस्क ऑडिट के थ्रू भी पिकअप करते हैं केसेस को। तो हमारे पास पिक करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, हम डायरेक्टली किसी को नहीं कर सकते उसूलन, ठीक है। यहाँ तक आर वी क्लियर? अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो हमारा पहला फंक्शन जो था दैट वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेडरल टैक्सेस, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये बातें बताकर आपको कंफ्यूज ना करूँ। माई जॉब इज एक्चुअली टू मेक यू राइट द इंफॉर्मेशन इन योर पेपर। मुझे आपको बातें करके बातें नहीं करवाना, मुझे आपको बातें लिखवानी है। तो अब मैं अगर आपको एक सेंटेंस दूं, आप उसको एलेबोरेट कर लें, दिस इज़ हाउ वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। और यही मैं चाहती हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपने जो भी जवाबात हैं चैट के अंदर लिख सकते हैं। अगर कोई भी मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, आपको 5 मिनट दे रही हूँ कि आप उसके ऊपर 4 लाइनें लिखें, तो आपको वो 4 लाइनें लिखने आना चाहिए। फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इंक्लूड करवाती जाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको पैराग्राफ को मेंटेन करवाती जाऊंगी। साउंड्स गुड? ओके। अब हमारे पास आ गई बात एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेडरल टैक्सेस। बहुत माइन्यूट सी मैंने आपके सामने बात की, भाई रजिस्ट्रेशन भी होती है, फिर उसके बाद आप लोगों को जी फैसिलिटेशन भी होती है, आप फैसिलिटेट भी करते हैं। उसके बाद आपके सबमिशन ऑफ रिटर्न्स भी होती हैं। उस सबमिशन ऑफ रिटर्न्स को भी आप मॉनिटर करते हो, सुपरवाइज करते हो। तो आपने मॉनिटर किया एंड सुपरवाइज किया, यू आर एक्चुअली लुकिंग इनटू ऑल दीज थिंग्स, हाउ इज इट हैपनिंग, ठीक है। आपने मॉनिटर किया, आपने सुपरवाइज किया, उसके बाद आपने असेसमेंट की, सिलेक्शन हुई बोर्ड की तरफ से, ये भी फंक्शन ऑफ बोर्ड है कि सेलेक्ट करना। उसके बाद आपने उसके ऊपर असेसमेंट की, असेसमेंट के बाद आपने कहा भाई कलेक्शन हमें चाहिए, और कलेक्शन आपने की। अब क्या आपने कलेक्शन जितनी आपको करनी चाहिए थी उतनी आपने की? नहीं। अगर हम उतनी कलेक्शन करें जितनी हम प्रोजेक्ट करते हैं हर माह, एवरी मंथ वी आर गिविंग अ मंथली प्रोजेक्शन टू द बोर्ड, दैट फील्ड फॉर्मेशन यूनिट 1 कंपनीज, फील्ड फॉर्मेशन यूनिट 2 इंडिविजुअल्स एंड हमारे पास पार्टनरशिप्स, फील्ड फॉर्मेशन 3 गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, फील्ड फॉर्मेशन 4 मिसाल के तौर पे सैलरीज। हमारी इतनी प्रोजेक्टेड हैं फिगर्स, और हम प्रोजेक्टेड फिगर्स के बाद हमें अगर इफ़ वी आर अनेबल टू फुलफिल दैट टारगेट, व्हाट विल हैपन? जितने हमने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के अंदर अपना अंदाज़ा लगाया था कि ये 12 महीने के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे, अगर हम नहीं कंप्लीट कर पा रहे तो क्या हो रहा है? हम अपने एक्सपेंडिचर्स को मुकम्मल नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपने एक्सपेंडिचर्स को मुकम्मल नहीं कर सकते, और एक्सपेंडिचर को मुकम्मल हम वैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास डेफिसिट बढ़ जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि मैम आई नीड टू अंडरस्टैंड कि डेफिसिट क्या है, बजट क्या है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो मैं बजट के ऊपर अगेन एक दूसरी क्लास भी लूँगी, हालांकि मैंने एमसीक्यू के प्रिपरेशन में ऑलरेडी इनिशियल डेज में बजट के ऊपर क्लास ली हुई है, लेकिन मैं फिर से आपके लिए थोड़ा सा आपको ये समझाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस किस तरह से होती है, तो उसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ, ताकि फिर मैं अभी आपको 5 मिनट्स के लिए क्वेश्चन दूँ तो आप कर सकें। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये वी नो दिस थिंग दैट वी हैव ईयर एंडिंग, ठीक है। व्हाट इज यूजुअली अ ईयर एंडिंग? व्हाट डज यूजुअली अ ईयर एंडिंग मीन? क्या होता है ईयर एंडिंग? ये होता है कि इस साल हम अपने
सारे अकाउंट्स यहाँ तक क्लोज करेंगे, कट ऑफ होगा, उसके बाद हमारा दूसरा साल होगा स्टार्ट। काफ़ी केसेस में 1 जनवरी इज द ईयर ओपनिंग एंड ईयर एंडिंग इज 31 दिसंबर। कंपनीज के डिफरेंट ईयर एंडिंग्स होते हैं, ये मैं आपको छोटा मिसाल दे रही थी, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से ही स्टार्ट होता है, अनलेस हम जाके परमिशन लेके हमारे ईयर एंड चेंज करें आप, ठीक है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर इज एक्चुअली 1 जुलाई टिल 30 जून, राइट। हम लोग जैसे ही 30 जून कंप्लीट होता है तो हम लोगों को टाइम देते हैं टू फर्निश टू प्रिपेयर एंड फाइल देयर रिटर्न्स। हम कुछ सेक्टर्स को 30 सितंबर देते हैं और कंपनीज को अक्सर 31 दिसंबर तक अलाउ करते हैं। तो हर सेक्टर के अकॉर्डिंगली हम उनको अलाउ करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये तो हो गया ईयर एंडिंग, लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क यू, लाइक आई सेड कि भाई हम हर महीने की प्रोजेक्शन देते हैं कि एक माह के अंदर हम कितना अचीव कर सकते हैं। वो प्रोजेक्शन हम लोग क्यों देते हैं? एग्जैक्टली, एस्टिमेट लगा सकें। वाई इज एस्टिमेशन रिक्वायर्ड? डेफिसिट तो हम जा रहे होते हैं वैसे भी, लेकिन क्या हम फर्दर डेफिसिट में तो नहीं जाएंगे? क्या साल की शुरुआत से भी पहले बजट प्रिपरेशन होना शुरू हो जाती है। बजट प्रिपरेशन होना जब शुरू हो जाती है तो बजट प्रिपरेशन कौन से फौरा से स्टार्ट होती है? कौन बजट प्रेजेंट करता है इन द नेशनल असेंबली? ये तो पता होगा, फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को कौन कहता है? प्राइम मिनिस्टर अलाउ करता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ें कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है कि ये बंदा बजट को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए कि हम इतनी जब सारी बात कर रहे हैं कि टैक्स अथॉरिटी है, 2007 एक्ट FBR एक्ट के थ्रू वो बनी है, CBR से FBR भी हुई है, उस एक्ट के अंदर फंक्शंस मेंशन किए हुए हैं। फिर मुख्तलिफ हमारे पास जो टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम्स एंड देन फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जिनके अंदर FBR को एज ए एजेंसी अपॉइंट किया हुआ है। पर आप मुझे एक बात बताइए कि टैक्स कलेक्शन की इजाज़त किस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है? ये बताइए। कि कौन, क्यों हम FBR की बात तो करें, जब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें मालूम होंगी कि भाई आर्टिकल 77 अलाउ करता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि हम टैक्स कलेक्ट करें, ठीक है। वो चार्जिंग सेक्शन अलग है, टैक्स कलेक्शन की बात कौन करता है? एग्जैक्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल? 77, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप लिख रहे होंगे, जब आपका एग्जामिनर पेपर देखेगा, बोलेगा यार ये इतना ज़बरदस्त एलेबोरेट कर रहा है, इसको तो सब पता है। अगर आपको नहीं भी पता, 5-6 फिगर्स पता हैं, at least you can write a para, you can make a mole out of mountain, you can expand your sentences. It's all about expansion of sentences. Previously CSS में एक एग्जामिनेशन का पार्ट होता था 2016 से पहले कि आपको एक टॉपिक स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे पैराग्राफ लिखें इसके ऊपर। जिसको एक्सपेंशन ऑफ सेंटेंसेस आ जाएगा उसको ऐसे लिखना भी आ जाएगा, उसको पूरा सवाल अटेम्प्ट करना भी आ जाएगा। हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो आर्टिकल 77 अलाउ करता है। आर्टिकल 80 आपको अलाउ करता है कि आपने बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना है, बजट स्टेटमेंट देनी है। आर्टिकल 80 अलाउ करता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 82 आपको प्रोसीजर ऑफ बजट स्टेटमेंट भी बताता है।
आर्टिकल 82 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोसीजर ऑफ बजट भी बताता है कि बजट को आपने किस तरह से फॉर्मुलेट करना है, इजाज़त आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। 82 प्रोसीजर फॉर बजट स्टेटमेंट, नाम ही उसका यही है, 80 बजट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर हैं। अब बात आ जाती है कि बजट के अंदर आपको प्रेजेंट बताया जाएगा कि भाई हमारे पास ये हम अखराजात, ये हमारा करंट एक्सपेंडिचर होगा, यानी करंट एक्सपेंडिचर से मुराद, मैं थोड़ी बजट की इसलिए बात करी, मैं इसको बता सकूं ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से, आप लिख सकें, एटलीस्ट 2 लफ्ज़ तो लिख सकें, ताकि मैं आपका भी छोटा असाइनमेंट जो है ले लूँ अभी आपसे। ठीक है, तो इन द बजट हम एस्टिमेट करते हैं। When we were in class 4 or 5, I remember there used to be a topic approximation and estimation. So I remember in my maths book the teacher used to say, and Allah unko jannat naseeb kare, the teacher used to say, just look at one glimpse on the workbook and tell me how many pencils are there. So what I used to do as a kid, I used to start counting them. And the teacher used to say, don't count them, just give me an estimate. Then I used to give them a rough estimate and then she used to say, now count it. Then उसके बाद हम एक्चुअल में करते थे। पर्पस ये आपको ये बताने की ये बात है कि हमारे एस्टिमेशंस भी वर्कड अपॉन होते हैं, उनके ऊपर काम किया हुआ होता है। एस्टिमेशन एक अंदाज़ा नहीं होता, अंदाजे के पीछे भी एक बेसिस होती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर ये होने वाला है, करंट ये होने वाला है हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर आपको पूरी हुकूमत चलाने के पैसे हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, वो आपको अलाउ करता है कि आप तरक्याती काम करें। और जिस तरह से जब हम बताने जाते हैं, आप देखेंगे कि बजट जिस तरह से तश्कील किया जाता है, उसके बाद बताया जाता है, तो अक्सर पार्लियामेंट के अंदर डेस्क को टैप किया जाता है या बोला जाता है या हूटिंग होती है कि नहीं ये होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। जब वो एक्सपेंडिचर्स बताते हैं उसके साथ साथ वो आपको अपने रेवेन्यू भी बताते हैं कि इस साल हम लोग रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये टैक्स ऊपर या नीचे करने वाले हैं। टैक्सेस को बढ़ाना या कम करना, टैक्सेस को बढ़ाना इज़ एक्चुअली, इन शॉर्ट मैं लफ्ज़ फेलियर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन ये हमारे एंड पे गलती है। हमें टैक्सेस क्यों बढ़ाने पड़ते हैं? क्योंकि हम अपने टैक्स रेवेन्यू अचीव भी नहीं कर सकते अक्सर और बेशतर, और प्लस उसके साथ साथ जो हमारे पास जो मेथड देखें, वी आर ऑलवेज नॉट एबल टू अचीव गो इनटू सरप्लस। अगर हमें टारगेट दिया गया, हमने टारगेट पूरा कर लिया, ओके, टारगेट से थोड़ा ऊपर गए, इट्स गुड, लेकिन हमारे जो खर्चे हैं, अखराजात हैं, वो हमेशा इतने ज़्यादा होते हैं कि टैक्स रेवेन्यू को अब हम सरप्लस में लेकर भी जाएं तो भी इश्यूज़ हैं, तो हमें रेट बढ़ाना पड़ता है। और जब रेट बढ़ाए जाते हैं तो लोगों के ऊपर वज़न बढ़ता है। आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान मुख्तलिफ हम लोगों ने भी पढ़ाया और आपने खुद भी स्टडी किया होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपके डायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस होते हैं? आपने जो वॉलंटरली जाकर जमा करवाने। आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? वो टैक्सेस जो कि आप किसी भी एक्सपेंडिचर या अखराजात के ऊपर जब जा रहे हैं तो आपके ऑटो डिडक्शन हो जाए। डू यू एग्री ऑन दिस? अगर हम इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएं और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करें, then you will see that everybody from the public is coming in the ambit of and the tax net. डायरेक्ट टैक्सेस हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम हैं, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन ज़्यादा है। हमारी टैक्स बेस इज़ अनदर थिंग, टैक्स बेस भी कम है
दूसरा, हम टैक्स सेविंग नहीं करते, टैक्स एवेजन करते हैं। हमारा काम है टैक्स बेस, हम बढ़ाते हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के अंदर आप देखेंगे टैक्स बेस की कितनी बात की हुई है जी। मैं आप बताती हूँ, मैं खुद इसका जीता जागता सबूत हूँ कि मैंने टैक्स बेस बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। जब मुझे पता ही नहीं है एक इकोनॉमी एग्जिस्ट कर रही है, मैं जानती हूँ कि नाइफ और फैसल फॉर एग्जांपल ये मेरी क्लास के 2 स्टूडेंट्स हैं क्योंकि ये मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। जो मेरे बकाया 40 स्टूडेंट हैं जो मेरी आंखों के सामने नहीं हैं, उनको मुझे हाउ वुड आई नो हु इज टेकिंग माई लेक्चर? आई डोंट नो unless they come and register with alums. Then I'll know okay, there are 40 students who are online. Ji? I have different ways of making them agree. I'll tell you. Number 1, why would you ask, how would I ask Junaid to give me money when he is getting some benefit? Agreed? Right? If I'm going to universities and I am giving a lecture of regarding taxation, तो मैं उनको benefits बताऊंगी। किस तरह से? कि हैदराबाद के अंदर आपको फेस टू फेस ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है, राइट? आपको कोई सवाल होगा, हम 2 मिनट में इधर आ जाएंगे। एग्रीड? दूसरी चीज़ ये कि टीचर की क्वालिफिकेशन भी अच्छी है। After visiting the shops, we encouraged them as well. We conducted several workshops. We conducted workshop in government universities. I was part of it. We conducted workshops in private universities because universities have big spaces to talk. We went into the Hyderabad Chamber of Commerce. We also went to other remote areas and the countryside where we can talk to people directly and encourage the traders associations to register. The traders and associations, they are already registered because of sales tax. When they are registering for sales tax, it's a mandatory requirement for them to have an NTN as well. So they both go hand in hand with each other. So we have encouraged a lot of taxpayers and we have increased the tax net as well. So that's part of it's part of our policy as well, it's part of the function of FBR as well, to implement the tax administration reforms. And if you read TARC very categorically, it talks about tax base, it talks about the tax net as well. All right, so budget, many. The tax, if you just talk about the tax base, if you ask me, when I joined in 2015, roughly there were 10 lakh people in entire 10 lakh persons, which may include the companies, individuals and AOPs who were registering, right? Right now it's almost 23 lakh roughly. These are the people who filed return, The people who are not filing return, they just have an NTN, that's another thing. The list of not active taxpayer, because specifically active taxpayer list means another thing. People who have paid and who have filed return for the tax year 2021, they are at the ATL. Maybe you have filed return, or maybe she has filed return for the tax year 2020. She had filed a return 2020. For example, she is not on ATL. Active taxpayer list is for example now 2020 has ended. If he has filed return for 2022, he is not on active taxpayer list. You can be because you have filed the return for 2021. She can't be because she has filed the return for 2020. So they are registered, they are not on ATL. If you want to know the list of ATL, go to the FBR website. Entire list of people in Pakistan who are on the ATL list, it's there. It's there. You can download it too. It will come. And you can check because it's a public document.
right? And you can check yourself on the ATL as well. So we can say that 23 lakh people did file their return. How many are registered? Maybe 25 lakh, because there are people who are registered since 2001 and they haven't filed returns. So it does come in that. Now let me talk about budget. Just basic of budget I will give you. On budget we have separate classes, because we have to talk about that, because I want you to start writing. So budget is an estimate about the revenue and the expenditure. What is the difference between expense and expenditure? Naif, you should tell me. Yeah, it relates to what? What is the difference between expense and expenditure? Expenditure is basically, this term is used when somebody has spent money, paid. When they have paid. Expense, I will incur expenses. I have paid the expenditures. Now did you get that? Alright. So we will talk about the estimates of expenditure that we will be going for the next 12 months and the revenue receipts that we will be getting for the next 12 months. We are going to talk about that. Okay. जब हमारे पास रेवेन्यू फॉर एग्जांपल 50 मिलियन का है, 30 मिलियन का हमारे पास, दिस इज पाकिस्तान रुपीस, तो हमारे पास 20 मिलियन का सरप्लस है, लेकिन हमारे पास एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है. हमारे पास अगर रेवेन्यू रिसिप्ट मिसाल के तौर पे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, रेवेन्यू रिसिप्ट 50 मिलियन की हैं, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर हमारे पास 80 या 180 मिलियन का होगा. हमारे ये कंडीशन है बाय द वे, राइट. सो आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग ओवर हियर दैट हमारे पास हम जब बजट डिसाइड करते हैं, जब बजट डिसाइड करते हैं तो हम इस रेवेन्यू की बात करते हैं, और वन ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग एजेंसी जो है वो एफबीआर है. हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है, ठीक है, हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है जो कि मुख्तलिफ फीसेस के फॉर्म में गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आपसे लेती हैं. बहुत छोटी सी हमारे पास होती है, बहुत कम अमाउंट में आपसे लेती हैं. तो हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे रेवेन्यू और क्योंकि बजट का सेपरेट टॉपिक है, आई विल टॉक अबाउट दैट. सो रेवेन्यू इंक्लूड्स टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स करंट एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. हमारा एक्सपेंडिचर हमेशा रेवेन्यू से ज़्यादा रहा है पास्ट ट्रेंड्स में, जिसकी वजह से हम लोग डेफिसिट में जाते हैं. अगर हमारा एक्सपेंडिचर कम होता, रेवेन्यू ज़्यादा होता, हम सरप्लस में जाते हैं. डू यू एग्री ऑन दैट? अब मेरा अब आपसे सवाल है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अंदर हम इन्फोर्स करते हैं, हम इन्फोर्स करते हैं लॉ को, हमें अलाउ किसने किया इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ? हमारी ऑर्डिनेंस ने, एफबीआर के थ्रू. हमें अपॉइंट किसने किया है? एफबीआर एक्ट ने हमें अपॉइंट करवाया एम्प्लॉइज़ को. ताकत किसने दी कि ये कर रहे हैं आप जाकर? ऑर्डिनेंस ने, ठीक है. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेपरेट आपको पावर्स देगा, सेल्स टैक्स आपको सेपरेट पावर्स देगा. सेल्स टैक्स में जाके आप डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं, इनकम टैक्स में आप मेजर्स लेंगे. हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में कोई फ्लॉ है? कोई फ्लॉ है? अपने ध्यान में सोचें, कोई फ्लॉ बताएं मुझे. अगर फ्लॉ नहीं है तो हमें बहुत टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए. क्या हम करते हैं? गवर्नमेंट को चलाना, मुल्क को चलाना, हम इससे कम स्टैंडर्ड नहीं कर सकते.
सुनिएगा, अगर आप किसी जंगल में जाते हैं, बहुत रॉ एग्जाम्पल है, और आप शिकार करना चाहते हैं, तो आप एक एक झाड़ी को चेक करेंगे कि आपको आपका शिकार मिल जाए। ये बेसिक हमारी एक इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। अगर हम एफबीआर का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो हमारे डिफेंस बजट को आप देखें पूरा, अगर आप डिफेंस बजट देखेंगे, डिफेंस का पोर्शन देखेंगे और एफबीआर का पोर्शन देखेंगे, एफबीआर का पोर्शन शायद 6-7% उससे आगे हो। आप ये समझिए कि पूरा टैक्स कलेक्ट करके भी अगर हम उसमें लगाएं तो भी डिफेंस बजट मुकम्मल नहीं होता। मेरी बात को समझिएगा, हमारे एक्सपेंडिचर्स जितने हैं हम कम कर सकते हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स लेते हैं, लेकिन हमारा मुल्क डेवलपिंग स्टेज पर है। इससे अगर हम कम करते हैं तो हालात में प्रॉब्लम, हमारे हालात ख़राब हो जाते हैं। फंड्स को लेकर आना, फंड्स की यूटिलाइजेशन हम बजट के थ्रू करते हैं। अब बजट जो है एक्सपेंडिचर के थ्रू करते हैं। अब एक्सपेंडिचर के अंदर जाकर कुछ मामलात खराब हो रहे हैं, दैट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ करप्शन दैट माइट बी प्रिवेलिंग इन योर माइंड, देयर आर अदर प्रॉब्लम्स टू, that can be maladministration as well, that can be lack of certain measures as well. आप रेवेन्यू को बढ़ाएं कैसे, ये हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। हमारे एफबीआर एक ऐसी एंटिटी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है, हर तरह से हमारी अकाउंटेबिलिटी चेक की जाती है। वी ऑल्सो हैव फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन, आपका बैंकिंग ऑम्बड्समैन भी होते हैं, वो भी आपको एक एहतसाब आपका करने वाले होते हैं। बैंकिंग ऑम्बड्समैन भी होते हैं, हमारे टैक्सेस के भी ऑम्बड्समैन हैं। अगर आप किसी मुहतसिब आला के पास जाएं और अपनी कंप्लेंट लेकर जाएं कि मेरे साथ ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, फ़ौरन एफबीआर को एक ख़त लिखा जाता है कि अपने पैरावाइज कमेंट्स भेजें और अपने किसी 19 ग्रेड के या 20 ग्रेड के इंडिविजुअल को या ऑफिसर को हमारे पास भेजें कि इस शख्स के साथ ये गलत क्यों हुआ। कि क्या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है? नहीं होता। वी आर बीइंग So there's a lot of accountability on FBR as well. FTO is actually looking into all these things कि यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। अब हम बात करते हैं क्या कोई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लॉ है, क्योंकि मैं इस बात के बाद आपसे फ़ौरन एक सवाल करवाना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे बताइए कोई फ्लॉ आपको नज़र आता है? हम लंबी बात करेंगे और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की, छोटी सी आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। फ्लॉ बताइए मुझे कोई। वेरी गुड, देयर इज कम्युनिकेशन गैप बिटवीन टैक्स पेयर एंड द टैक्स मैन। सो जो हमारी टीम बी है उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही, और अक्सर सेलिब्रिटीज़ को इनकरेज करते हुए देखेंगे, वो इनकरेज करते हैं टैक्स पे करें। तो हम व्हाट आर वी डूइंग, वी ट्राइंग टू help people understand what we want to, what we want to achieve. ठीक है, so we had a question from one of our students, how can we curb tax evasion in Pakistan? So I was answering him and I was telling him what is actually the root cause of tax evasion. So one of the root cause of tax evasion is that, and very well answered by somebody, said we have lack of communication. Excellent. We have lack of communication. We don't have good communication with the taxpayer, who is our team B actually for tax collection. And then we also have one more problem, that we are communicating and taxpayers are communicating with us with the help of advocates and the lawyers, and sometimes the message is not communicated very well. So we have communication problem. What else could be a problem? Why do people evade taxes?
because of the mindset as well, because of fear as well, that taxpayers are unwilling to present. And moreover, this is actually the job of the ordinance, this is the job of FBR to enforce tax implementation, to enforce taxation. ये हम फोर्स नहीं, एनफोर्स करवाना हमारा काम है कि अगर माइंडसेट नहीं है तो हम माइंडसेट बनवाएं by creating awareness workshops as well, by telling them about the benefits as well. The taxpayers don't know the benefits, right? And moreover, there is also a culture that many taxpayers, the majority of taxpayers think that this is not returning to us in the form of benefits given by the government. We are a developing economy, we should support Pakistan as much as we can at the very end that we have, with the help of filing of taxes and filing of returns and paying of taxes, and that's what we do in indirect taxes. लेकिन मैं encourage करती हूँ कि लोगों को कि वो direct taxes हम लोग बढ़ाएं, not indirect taxes. Direct taxes हमारे जो लोग हैं, जो भी मैं आपके साथ अभी right now class में के अंदर बात कर रही हूँ, you can write all of the things inside the question that I am going to ask you. तो जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो वॉलंटरली टैक्स पेमेंट है, एंड वॉलंटरली टैक्स पेमेंट दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर बहुत हाई परसेंटेज पे होती है. हमारे पास पाकिस्तान में बहुत कम डायरेक्ट टैक्स की पेमेंट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं. इवन अगर हम लोग अपनी फिगर्स देते भी हैं पाकिस्तान को, जो बोर्ड को, कि हम इतना हमने टैक्स कलेक्शन की, तो आप ये देखेंगे तो हमारे पास विदहोल्डिंग के टैक्सेस की कलेक्शन हमारे दूसरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शंस की कलेक्शन से ज़्यादा होते हैं. और विदहोल्डिंग हमारे लिए कौन करता है? विदहोल्डिंग एजेंट्स कर रहे होते हैं, हमारी टीम बी, जिसको हम अभी भी कहते हैं. तो जो हमारी टीम बी है, हु इज़ ऑल्सो टैक्स पेयर, वो हमारे एंड पर इन्फोर्स करके दे रहा होता है कि भाई फॉर एग्जांपल XYZ पर्सन है, मुझे उसको पेमेंट करनी है, मैं उसकी पेमेंट करने से पहले उसके पैसे कट कर दूँ. उस बेचारे को मिले ही नहीं, अगर मिलेंगे हो सकता है वो ना भी जमा करवाए टैक्स, तो मैं पहले ही कट कर दूँगी, जो उसको जमा करवाने मैं कट कर लूँ. जब विदहोल्डिंग टैक्सेस आए तो हमारा टैक्स रेशो, टैक्स जो था कलेक्शन बढ़ गई, क्योंकि जो टैक्स उसने मिस्टर सी ने करना था वॉलंटरली जमा, अब वो मिस्टर बी कर रहा है, और मिस्टर बी ने उनके पैसे पहले ही कट कर दिए. अब मिस्टर बी से हम बात करेंगे, भाई आप गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, आपने अपने टीचर्स को सैलरी देनी थी, आपने सैलरी की डिडक्शन की, उनकी की है वैसे, तो वो हमें चेक देंगे. हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल हेस्को या सेप्को के साथ, हम बात करेंगे, उनको बताएंगे भाई आपने लोगों से बिल के ऊपर जो टैक्स कलेक्शन की है वो काइंडली दें, 200 मिलियन 300 मिलियन का टैक्स आ जाएगा, जो कि लोगों ने खुद पे करना था वो नहीं कर रहे, तो हम उनको पे करवा रहे हैं इन दिस फॉर्म. अब बहुत सारे दूसरे टैक्सेस हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो कि जिस तरह से सेल्स टैक्स है वो फिर सबके ऊपर लगते हैं, क्योंकि बेसिक कंजम्पशन तो हम सब कर रहे हैं. ठीक है, जब हम ये सारी कंजम्पशन कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट किस आदमी को हो रहा है? कंज्यूमर को हो रहा है. कंज्यूमर सब हैं, अमीर गरीब सब. डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादातर कौन भरता है? अमीर, या जो कि इस एम्बेट में फॉल कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर मिस मलिया हैं अभी, या आप हैं, या सब. मिसाल के तौर पे आपके पास जॉब नहीं है जॉब फॉर इंस्टेंस, ठीक है, क्या आप लायबल टू पे टैक्स हैं? नहीं है. ठीक है, आप अच्छी फैमिली के हैं, आपके पेरेंट्स हैं लायबल टू पे टैक्स, लेकिन आप नहीं हैं. तो लायबल टू पे टैक्स जो है कौन हो सकता है? हु हैज़ द एबिलिटी टू पे टैक्स. एग्रीड. एंड डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर मेजॉरिटी केसेस में एबिलिटी नहीं भी होती, चलें इन पाकिस्तान नहीं होती, दूसरे कंट्रीज़ में होती है. और अगर एबिलिटी होती है तो टैक्स इवेजन का भूत हमें सवार होता है कि टैक्स बचा लूँ, बचत कर लूँ, किसी ना किसी, कहीं कहीं पर ये हैबिट होती है, कहीं कहीं पर ये मजबूरी होती है. तो अगर हम ओवरऑल चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहें तो ये हैबिट कुछ सालों में ख़त्म हो सकती है, जब हम ऐसे इंटरनल जब जिस तरह अगर हम इस किस्म के कंट्रोल्स रखें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इस तरह से अपने लॉ हमारे इस तरह से हो कि लोग इवेड ना कर पाएँ. जिस तरह से आप गाड़ी परचेज करते हैं, आपको ATL पे आना मस्ट है, बैंक से निकलवा रहे हैं आपके लिए मस्ट है कि आप ATL पे आएँ.
तो हमने लॉ ही ऐसा बना दिया कि आपके लिए मजबूरन आपको आना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे क्या मालूम हो सकता है पेपर लिखने के हवाले से? ये जो मैंने पूरी बात की है, अभी मैं फंक्शंस के ऊपर और भी कुछ देर बात करूँगी, ठीक है, और आपसे लिखवाना चाहती हूँ। हम आपने अभी जो फॉर एग्जांपल थक भी गए हैं तो कैसे होगा, ओ माय गॉड, पानी भी पीना है, कहीं और भी जाना है, नमाज भी पढ़नी है, कमर भी दुख गई है, सुन सुन के कान पक भी गए, तो ये आपको 2 महीने के लिए बेयर करना पड़ेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज राइट नाउ, इन सारी बातों से आपको क्या समझ में आया बताइए? Excellent. Okay. Yes. Exactly. हम छोटा सा भी एक सवाल लिख लेते हैं और इसको एलेबोरेट करते हैं। आप अपने दिल में ही इसे एलेबोरेट कीजिएगा, ठीक है? यानी कि लिखने के बाद जब आप लिख लें और बहुत पॉइंट्स भी आ रहे हो, लेकिन मैं आपको 5 मिनट दूंगी, उसके बाद इसको दिल में अंदर पढ़िएगा, फिर मैं आपको कॉपी यहीं चेक कर लूँगी। यू डोंट नीड टू रीड इट, सो डोंट वरी। सवाल आप ये लिखेंगे, बल्कि मैं लिख लेती हूँ। जब हम सवाल कर लेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, जो हमने की हैं आपको काफ़ी बातें समझ में आ जाएंगी। हो सकता है सवाल आपको मैं मुश्किल भी दूं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको कोई डिफ़िकल्ट दूँ। मैंने डिफरेंट सोचा, लेकिन उसको लाने के लिए पहले मैं आपको बेसिक करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने डिस्कशन किया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं आपको सवाल चेंज करूँ, अपना थोड़ा आसान रखूँ। उसके बाद मैं वो डिफ़िकल्ट वाला उसके बाद आपको करवाएंगे, वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अब what is the meaning of this key word discuss? ठीक है, सबसे पहले अगर आप इस स्टेटमेंट को, अगर आपने इसका जवाब देना है तो आपने जवाब कैसे देना है? तो हमेशा याद रखिए, अगर आपका जवाब 8 लाइनों का भी हो तो आपकी पहली 2 लाइनों में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सुनिएगा सुनिएगा, फिर उसके बाद की लाइनों के अंदर आपने दोनों साइड ऑफ बातें करनी हैं, ठीक है? इंक्रीजिंग टैक्स बेस इज़ वाइटल टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। आप उसके अंदर बात करेंगे कि टैक्स बेस इंक्रीज करने से क्या फ़ायदे हैं, और टैक्स बेस इंक्रीज नहीं करते तो क्या नुकसानात हैं। आप बताएंगे, वो डेफिनेट आप इंट्रोडक्शन करेंगे तो आप उसमें बताएंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर
अगर मैं कह रही हूँ 8 लाइन का हो तो क्या करेंगे? आप इंट्रोड्यूस करेंगे, आप टैक्स बेस की 1 लाइन के अंदर या 2-1.5 लाइन के अंदर बात करेंगे, फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टैक्स बेस, फिर आप बात करेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि डिप्रेशन में जा रही है एट द मोमेंट। उसके लिए हमें कलेक्टिव मेजर लेना चाहिए, उसको मजबूत करने के लिए हमारा जो टैक्स रेवेन्यू का जो सुतून है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसका जो पिलर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसका पिलर तब स्ट्रांग होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस हैं वो टैक्सेस लोग पे करें और नए लोग AOPs के फॉर्म में, कंपनीज के फॉर्म में, इंडिविजुअल्स के फॉर्म में अपने टैक्सेस वॉलंटरली अपने आप को रजिस्टर भी करें और टैक्स पे करें, जो हमारी जो ब्लैक इकोनॉमी है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से भी आप बात कर सकते हैं। अभी राइट नाउ यू नो व्हाट इज FBR डूइंग, यू नो दिस थिंग। बेसिकली आपको पता है FBR क्या कर रहा है, उसका काम है रेगुलेट करना, इट्स एन एजेंसी। तो आप ये बात कर सकते हैं, ठीक है, अगर 8 लाइन का जवाब है तो, लेकिन ये आपका जवाब 8 लाइनों से ज़्यादा होगा। इसको आप घर पे असाइनमेंट के तौर पे भी लेकर जा सकते हैं। अभी क्या करें, 5 मिनट के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी, आपको ये समझाऊंगी कि इस सेंटेंस को, डिस्कस को छोड़ दीजिए, इस सेंटेंस को 4 लाइनों के अंदर एलैबोरेट करें, बताएं इस सेंटेंस का मतलब क्या है। सिर्फ 4 लाइनों के, नॉट मोर देन 4 लाइन्स। All the online students, I am giving you a task right now कि आप 5 मिनट्स के अंदर ये जो स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग टैक्स बेस, आई एम रिपीटिंग अगेन, इंक्रीजिंग टैक्स बेस इज वाइटल, वाइटल यानी इम्पॉर्टेंट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इसको 4 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन करें, इस सेंटेंस को एक्सपेंड करें, तो मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोगों की कैपेबिलिटी क्या है। और इससे ये कैपेबिलिटी आपकी डिफाइन नहीं कर रहा, इट्स गुड टू मेक मिस्टेक्स। आप लोग 5 मिनट्स का टाइम लें और इसे करें। देखा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी जवाब दिए, वेरी गुड कायनात, वेरी गुड नूरैन, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरे जो यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडेंट्स, मैंने महसूस किया कि हो सकता है कि यहाँ मौजूद हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर जो हमें देख रहे होंगे या जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हो सकता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी टाइम के बाद लिखना आप लोगों ने स्टार्ट किया हो, तो आपको महसूस हो रहा होगा कि यार मैं कैसे लिखूं, ग्रामर की भी 1000 मिस्टेक्स हो सकती हैं, इस वर्ड का नेमुल बदल क्या होगा, या इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, या इसको किस तरह से मैं बता सकती हूं या सकता हूं। तो ये आपके जहनों में सवाल आएंगे, लेकिन जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई वॉलंटरली अपनी क्लास के अंदर कोई बताना चाहे तो मुझे ग्रेस्प मैं कर सकती हूँ आइडिया, अगर कोई बताना चाहे तो। जी फैसला बताइए। वेरी गुड। ओके, यानी फैसल ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया जाए कि आपका टैक्स पेयर और आपका दरमियान एक गैप ना हो। ठीक है, अगर हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा तो हमारा टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, और टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो हम लोग अपने एक्सपेंडिचर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं और टैक्स गैप नहीं आएगा। गैप नहीं आएगा जिस गैप की वजह से आपका डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया आपने। कुछ अगर आप बताना चाहें, दूसरे स्टूडेंट हमें बताना चाहें।